من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیز طالبات اور معلمات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ادارے میں جہاں ہم اس وقت بیٹھے ہیں، یہاں کے جو حضرت مولانا جو محتمم صاحب ہیں، اللہ نے ان کو ہر اعتبار سے نوازا ہے، لیکن یہ ان کی محبت ہے، اس وجہ سے انہوں نے ہم کو یہ حکم دیا، ورنہ یہاں ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بس اب اللہ سے دعا کریں کہ آپ کے سامنے آنے کے بعد اللہ ہمارے دلوں میں وہی باتیں ڈالے جو آپ کے لیے بھی نفع بخش ہوں اور ہمارے لیے بھی نفع بخش ہوں۔ ہم سبوں کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیوں کہ اللہ نے ہمیں ایسے ماحولوں سے نکال کر ایک جگہ پہنچا دیا جہاں ہم حفاظت میں ہیں، اور انسان کو بار بار اللہ کا شکر بھی کرنا چاہیے کہ اللہ نے آپ کو ایسا مدرسہ عطا کیا جس مدرسے میں رہ کر آپ اپنی حفاظت، اپنے پردے کی حفاظت، اپنے نمازوں کی حفاظت اور اس کے علاوہ دن بھر جو کام ہوتا ہے، اگر ہم گھروں میں ہوتے شاید ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ کی توفیق ہے، اللہ نے ہم کو اس دین کے ساتھ لگایا، اللہ نے ہم کو اس قرآن کے ساتھ لگایا، اللہ نے ہم کو ان حدیثوں کے ساتھ لگایا۔ ابھی حضرت مولانا مشتاق صاحب آپ کے سامنے کہہ رہے تھے کہ کمتری کا شکار ہوتے ہیں مدرسے کے، چاہے طالب علم ہوں یا طالبات ہوں، لیکن ہمیں تو بہت شکر ادا کرنا چاہیے، ورنہ ہم بھی اسی طرح زندگی گزار دیں جیسے ہماری بہنیں ہیں۔ گھر میں جا کر ہم دیکھتے ہیں گھروں میں اور پڑوسیوں میں اور بازاروں میں اس وقت کیا حال ہے، ہم بھی اسی طرح زندگی گزارتے ہیں، اور یقیناً ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہو جاتا ہے، اور یقیناً جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو ٹھیس پہنچ جاتی، لیکن اللہ نے ہمارے ساتھ ایسا نہیں کیا۔ ہمارے پاس کچھ اپنا نہیں ہے، یہ سب اللہ نے دیا ہے۔ جسم اللہ کی امانت ہے، آنکھیں اللہ کی امانت ہے، یہ کان اللہ کی امانت ہے، یہ ہاتھ اللہ کی امانت ہے، اور یہ امانت ہم کہیں بھی خرچ کر سکتے تھے، لیکن اللہ نے ہم کو اپنے قرآن کے ساتھ لگایا۔ چاہے قرآن پڑھنے والے جو قرآن، چاہے وہ ناظرہ پڑھنے والے وہ بھی، اور ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ صبح سے لے کر انسان اسی پر، ورنہ بہت ساری زبانیں، ہر زبان اللہ ہی نے پیدا کی ہے، لیکن آپ جب بازاروں میں جاتے ہیں تو زبانیں کچھ جو گاڑیوں کے ساتھ ہوتے ہیں وہ دن بھر گاؤں کے نام لیتے ہیں، اور جو میوہ بیچنے والے ہوتے ہیں ان کی زبان پر ہر وقت ہوتا ہے اس کی قیمت اتنی ہے، اس میوے کی قیمت اتنی ہے، اور کپڑے بیچنے والے اپنے کپڑوں کی تعریفیں کرتے ہیں اور ان کی زبان پر ہر وقت وہی ہوتا ہے۔ جو آدمی جس فن میں کام کرتے ہیں ان کی زبان پر دن پر وہی رہتا ہے، لیکن اللہ کا کتنا احسان ہے، اللہ کا کتنا کرم ہے، ہماری زبان بھی اسی اللہ نے بنائی، لیکن ہماری زبان صبح جب اٹھتے ہیں وضو کے بعد نماز میں شامل ہوتے ہیں
اور वज़ू करने के बाद कुरान पढ़ने में शामिल। ये ज़ुबान, इससे कुरान अदा होता है, इससे हदीस की इबारत अदा होती है, इससे नाव सरफ के आपस में समझाने की बातें होती हैं और हर वक्त हमारी ज़ुबान अल्लाह की याद में रहती। वरना अगर अल्लाह चाहते हमें भी किसी फन में लगा दे तो दिन भर वो उसकी तारीफ करते, लेकिन अल्लाह ने ऐसा नहीं। इसलिए मेरे बेटियों, हर वक्त अल्लाह का शुक्र करना चाहिए। अल्लाह हमको किसी जगह भी लगा सकते थे, लेकिन अल्लाह का एहसास हमारा दिल चाहता था या नहीं, हमारे घर वालों को अल्लाह ने कैसे डाला और कहाँ कहाँ से आए होंगे, ये अल्लाह का एहसान है। अब जब अल्लाह ने हमारे साथ ये एहसान किया, बाज़ मरतबा ऐसा भी होता है, आप कुछ सालों से तजुर्बा भी होता है कि मदरसे में आकर तालिबान अपने टाइम को ज़ाया करते हैं, बातों में रहते हैं, उधर इधर रहते हैं, लेकिन हर एक को सोचना चाहे ये टाइम, ये भी अल्लाह की अमानत है और कल क़यामत के दिन हमारे वालिदैन हम पर भरोसा किए हुए हैं, बल्कि हमारे पड़ोसी हम पर भरोसा किए हुए हैं, बल्कि हमारे तमाम रिश्तेदार, उन्होंने हम पर भरोसा किया है कि हमारी फलां बेटी फलां जगह पढ़ती है, वो आलिमा बनकर आ जाएगी, वो इल्म सीख कर आ जाएगी, वो घर में इंतज़ार में कि वो हमको सिखलाएगी। आपकी बहनें आपकी इंतज़ार करती होंगी, हमारे बूढ़े माए जो बेचारी अब आखिरी उम्र में है, उनका भी यही इंतज़ार है, मेरी बेटी आएगी, वो मुझे कलमा सिखलाएगी, वो मुझे नमाज सिखलाएगी, वो मुझे वज़ू सिखलाएगी, वो जो मैयत के गुस्ल है उनको सिखलाएगा, और उनके तमन्ना होगी जो हमने फलां मदरसे में जम्मू में डाल दी है, वो आकर अगर मैं इस दुनिया से रुखसत हो गई तो मेरा गुस्ल वही अदा करेगी, वही देगी। तो इसलिए इंसान को ये सोचना चाहिए, हमारे घर वालों पर को हम पर बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, इसलिए उन उम्मीदों को हमको सामने रखना चाहिए। फिर बहुत सारे वालिदैन, अगर हम घर में रहते, हम अपने वालिदा को बहुत काम देते, हम उनके घर में काम आते, लेकिन वो सब बर्दाश्त कर रही है। आपके वालिदैन इतने दूर से आई होंगी यहाँ बच्चियाँ, और उनको भी याद आता होगा, लेकिन वो बर्दाश्त करते हैं, क्यों? ताकि मेरी बेटी अच्छी बन जाए। अगर हमने मदरसे में आकर अपने टाइम को ज़ाया किया, मदरसे में आकर जिसके लिए हम आए हैं, अगर हमने उस फन को क्या नहीं सीखा तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, फिर घर वाले भी नाराज़ हैं, अल्लाह भी नाराज़ है। और आपके पढ़ाने वाले चाहे मुअल्लिमात हों या हमारे मुदर्रिस हों, जो भी पढ़ाने वाले हों, उनका दिल भी क्या हो जाता है, नाराज़ हो जाता है। जितनी मेहनत होती है उतने असातिज़ा के यहाँ भी दिल में वो जगह बना लेती है, इसलिए यहाँ आकर हमको मेहनत करनी चाहिए। इस मदरसे में बैठकर हमारा टाइम नहीं ज़ाया नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को हम पर उम्मीदें हैं, वो हमारे इंतज़ार कर रहे हैं कब आएगी मेरी बेटी, वो इस तरह करेगी। अगर हमने इस मदरसे में रहकर ऐसा नहीं किया, हमने अपने इल्म में महारत हासिल नहीं की, हमने अपने असातिज़ा से इल्म नहीं सीखा, उनका न माना, उन वो जो बातें कहते थे उनको बस एक कान से सुनना दूसरे कान से निकाल देना, ऐसा नहीं होना चाहिए। इल्म की जो जिन किताबों से हम इल्म सीख रहे हैं, जिन तिपाहियों पर हम बैठकर इल्म की वो किताबें जो हम रखते हैं, हर एक चीज़ का अदब करो, एहतराम करो, अपने असातिज़ा का एहतराम करो। ख़ासकर बच्चों में कुछ चीज़ें ऐसी पाई जाती हैं कि जो काबिल वो जो ठीक नहीं है, जो काबिल इस्लाह है, अपने मुअल्लिमात से अच्छी तरह उनसे बेहतरीन रवैया इख्तियार करना, और वो जो आपको कह रही है उनको अच्छी तरह सुनना, उनको अपने अमल में लाना। जितना इंसान अपने उस्ताद से मोहब्बत करता है, उतना इंसान उस्ताद का दिल खुश हो जाता है और उससे इंसान को नफ़ा होता है। इसलिए आपको अल्लाह ने ये तौफीक अता दे दी कि आप मदरसे में आ गए, इसलिए अपने आमाल, एक तो पढ़ाई है ही, वो तो ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ साथ अपने अंदर सालिहियत भी पैदा करनी है। वरना जब फारिग हो जाते हैं, उसके बाद जो हम सुनते हैं, इंसान का दिल फटने को आ जाता है कि ये आलिमा बन गई, अब इसका तरीका ये है,
अब इसका चलने का तरीका, लिबास ऐसा है, नमाजों का हाल ये है, जब कोई जिम्मेदार या कोई उस्ताद या कोई मालिमातों में से कोई जब ये बात सुनते हैं तो यकीनन दिल दुख जाता है, यकीनन इंसान परेशान हो जाता है। इसलिए पढ़ाई के साथ साथ अपने अंदर सालिहियत भी पैदा करे, तकवा इख्तियार करे। मदरसे में निज़ाम ज़रूर होगा, यहाँ आके जो मामलात कराए जाते हैं उनमें पाबंदी के साथ आप रहें, और यहाँ भी जब घर जाए उन मामलात की घर में भी आप क्या करें, पासदारी करें, उनको अच्छी तरह वहाँ भी उन पर अमल करें। इंशाअल्लाह उससे इंसान का फ़ायदा होता है। इसलिए जब अल्लाह ने ये सब चीज़ें हमको अदा की है तो हमें बार बार सोचना चाहिए अल्लाह ने हमारे साथ क्यों। हदीस पाक में है, अल्लाह फरमाए, जनाब रसूल अकरम ने फरमाया, अल्लाह जब किसी से खैर का मामला करते हैं तो उसको दीन की समझ अता फरमाते हैं। अल्लाह ने हमारे साथ खैर किए, हमें आज समझ नहीं आता है, हमें ये दिल में नहीं बैठता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्यों आए हैं। वहाँ तो लड़कियाँ घूम रही हैं, कोई बाजारों में है, कोई पार्कों में है, कोई गाड़ियों में है, मोबाइल हाथ में लिए हुए है, हमको ये जिंदगी बेहतर लग रही है, लेकिन ये धोखा है। तो इस दुनिया में रहना नहीं है, अल्लाह के सामने जाना है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने अमाल की फिक्र करें, नेक बनने की फिक्र करें, अपने अंदर सालिहियत की फिक्र करें कि मैं किस तरह बन जाऊँ, मेरे अमाल कैसे दुरुस्त हो जाए। ये तब हो सकता है जब हम खुद भी फिक्र करें। इसमें असातिज़ा ज़्यादा जोर नहीं कर सकते हैं, अमाल की फिक्र हमको खुद करनी चाहिए। मैंने कुरान पाक की जो आयत शुरू में पढ़ी, अल्लाह ताला भी फरमाते हैं कि जो तुम में से चाहे मर्द हो और या औरत हो, जो नेक अमल करे, अमाल सालिहा करे, बेहतरीन अमाल करे, तो मैं उसको हयात तय्यबा अता करूँगा, सुकून वाली ज़िंदगी अता करूँगा। इसलिए अल्लाह ने हमको ऐसे माहौल में रखा है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो हम इस माहौल में बैठ कर भी क्या अल्लाह को नाराज़ करें, हम इस माहौल में बैठ कर भी जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाराज़ करें, हम इस माहौल में बैठ कर भी हज़रत फातिमा को नाराज़ करें। अगर ऐसा हुआ तो तालिबात को समझना चाहिए फिर फ़ायदा नहीं है, फिर मदरसे वालों को धोखा है कि हमारे तालिबात बेहतरीन है, हमारे जो अंदर चल रहा है निज़ाम बेहतर है। अगर ऐसा नहीं है कि हम अल्लाह को राज़ी करने के मूड में नहीं है, हम जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राज़ी करने के मूड में नहीं है, फिर हम घर वालों से भी धोखा कर रहे हैं, अपने वालिदैन से भी धोखा कर रहे हैं। जो वालिदैन बेचारे सुबह से शाम तक लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, घर में जाकर मैं अपनी तालिबात को कहता हूँ कि घर जाकर अपने वालिद को खास कर देखना चाहिए, जो बेचारे मजदूरी करते हैं, क्या कितनी मेहनत करते हैं, उनके हाथों से कभी खून निकला हुआ होता है, उनके पीछे देख लेना चाहिए, उनको उनके कंधों को देखना चाहिए, वहाँ चमड़ी उठी हुई होती है मजदूरी करते करते, और दूसरों के वो पत्थर उठाते उठाते, लकड़ियाँ उठाते उठाते वो सिर्फ हमारे लिए करते हैं। इसलिए हम सबों को ये बात सोचनी चाहिए कि उन्होंने हमको टाइम दे दिया, अगर हमने उनके साथ अब दगाबाजी कर ली तो हम उनके पास भी मुजरिम हैं, और अल्लाह के पास तो यकीनन मुजरिम है। इसलिए हर एक तालिबा को, चाहे वो छोटी क्लास की है, चाहे वो अरबी दर्जात के हैं, जितने भी हैं, हर एक को देख लेना चाहिए हम क्यों आए हैं मदरसे में क्या करना है, किस लिए आए हैं, किस तरह ज़िंदगी गुजारनी है। जैसे आज यहाँ आप ज़िंदगी गुजारोगी, यहाँ नमाजों की पाबंदी करोगी, यहाँ सुबह उठने की पाबंदी करोगी, यहाँ जो मामलात है उन पर ज़िंदगी गुजारोगी, ये इंसान का एक मिजाज बन जाता है। आप जहाँ कहीं भी जाओगी इंशाअल्लाह वहाँ आप इसी तरह करोगी, और ये हमेशा आपकी ज़िंदगी का सरमाया रहेगा। इसलिए इन बातों को आप इंशाअल्लाह ज़हन में रखें, और अल्लाह का शुक्र भी करें कि अल्लाह ने हमको ये रास्ता दे दिया है, ये मदरसा दे दिया है। मदरसा तो इंतज़ाम करता है, लेकिन अब हमको खुद सोचना चाहिए। इंसान कभी मामूली
جو انسان بے ادبیہ کرتا ہے، چاہے اپنی معلمات کی بے ادبیہ ہوں، استاد کی بے ادبیہ ہوں، کتابوں کی بے ادبی ہو، یا جو کتابیں ہم پڑھتے ہیں ان کی بے ادبی ہو، پھر اللہ پھینک دیتے ہیں۔ انسان کہتا ہے، پھر معمولی بہانہ ہوتا ہے، جی اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، یہ سب بہانہ ہوتا ہے، اصل میں کوئی بے ادبی ہوئی ہوتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ آپ اس کے لائق نہیں ہیں، اس لیے بار بار اللہ کی طرف رجوع بھی کرنا چاہیے، شکر بھی کرنا چاہیے، اور اللہ سے معافیاں بھی مانگنے چاہیے، اور پھر محنت میں بھی لگنی چاہیے، اور کتابوں پر بھی محنت کریں، اور صالحیت میں بھی محنت کریں۔ جب انشاءاللہ محنت کرو گے تو اللہ آپ کی اس محنت کو ضائع نہیں فرمائیں گے۔ اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا